Yeah, good evening everyone. So let's start. तो हमें कौन करिबा आज गोटे इम्पोर्टेंट एसे टॉपिक गोटे हम ट्राई करिया पे ओके सो बिफोर दैट लेट मी टेल यू कि हमर जेतु परीक्षा बहुत क्लोज हे आसुची ओके तो हमर कोन होतन रिवीजन करिया रिलेटेड टू ओडिया और इंग्लिश पर्टिकुलरली ग्रामर और एसे तो एडा को हमें इट इज ओपन फॉर ऑल ओके तो हमर तो जो क्लास होतला दैट इज डिफरेंट तो जो माने हमर समस्त प्लेटफॉर्म रे जो माने अछंती ओके तो से माने पे हमें ओडिया इंग्लिश आउ एसे ओडिया एसे भी सो ओडिया एसे हमर चिरंजीत आम डिस्कसन जमी लास्ट टाइम डिस्कसन करूँ सिमिलर वे रे डिस्कसन करेंगे मे बी यही संडे रु आम स्टार्ट करवा ओके ओडिया एसे इंग्लिश एसे जोटा कंपलसरी पेपर पे निहाती दरकार सेटा हमरो करबा एटा गोटे हमर डिस्कशन टाइप रे मु भी हमें जोटा हमें वर्तमान भी करू जे टोटल डिस्कशन टाइप रे ओके तो मैक्सिमम पिलांकर डिफरेंट हमें पॉइंट नौ जाओ फाइनली ସେଇଟାରୁ ଆମେ ବହୁତ କିଛି ପଏଣ୍ଟ ପାଉଛେ ଏଠି ନା ମୁଁ ପଢଉଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ ୱାନ୍ ୱେ କମ୍ୟୁନିକେସନ ହଉନି ଟୁ ୱେ କମ୍ୟୁନିକେସନ ହଉଛି ଆଉ ଡିସ୍କସନ ହଉଛି ସିମିଲାର ଥିଙ୍ଗ ଆମେ ଯୋଉଟା କରିବା ଓକେ ସେଇଟା ଆମର ହବ ତ ଆଇ ୱିଲ୍ ଡେଫିନେଟଲି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କି ଯୋଉ ଚିରଞ୍ଜିତ ଯେମିତି ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ କରୁଥିଲେ ତ ସେମିତି ରାପିଡ ୱେରେ ଓଡ଼ିଆର ଯୋଉ ଆମର ଏସେ ହେଲା ଗ୍ରାମାର ହେଲା କିମ୍ବା ଆମର ଇଂଲିଶର ଯୋଉ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଯୋଉଟା କି ସିଲେକ୍ଟିଭ ଏସେ ଯୋଉଟା କି ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡିଲା ଭଳିଆ ତ ସେଇଭଳିଆ ଆମେ ଡିସ୍କସନ କରିବା ସୋ ଦ୍ୟାଟ କି ଆଟଲିଷ୍ଟ ଯେ ଇଂଲିଶ ଓଡ଼ିଆରେ ଆମେ ଡେଫିନେଟଲି ଯେମିତି କ୍ରସ୍ କରିବା ଓକେ ସେଇଟା ପ୍ଲସ୍ ଆମର ଏସେ ର ଗୋଟେ ପେପର 200 ମାର୍କ ରହୁଛି ଆଉ ସେଥିରେ ଯେମିତି ଆଟଲିଷ୍ଟ 110 କି 120 ରଖିଲେ ଗୋଟେ ଡିସେଣ୍ଟ ମାର୍କ ମାନେ ଆମେ କହିପାରିବା ଇଂଲିଶ ଓଡ଼ିଆ ଏସେରେ ଓକେ ଠିକ ଅଛି ତ ଆମର କଣ ହଉଛି ସୋ ଲେଟ୍ସ ଷ୍ଟାର୍ଟ ତ ଆଜି ଆମେ କଣ କରିବା ନା ଏସେ ପଢିବା ଯଦି ତମେ ଓପିଏସସି ର ହିଷ୍ଟ୍ରି ଦେଖିବ ଏସେ ଏନଭାୟରନମେଣ୍ଟ ଉପରେ ଗୋଟେ ଟପିକ ଟେ ଡେଫିନେଟଲି ତମର ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡୁଛି ଓକେ ତ ଏଇ ଯୋଉ ଏନଭାୟରନମେଣ୍ଟ ଉପରେ ପଡୁଛି ତ ଆମେ କଣ କରିବା ନା ତମେ ଡେଫିନେଟଲି ଗୋଟେ ଏନଭାୟରନମେଣ୍ଟ ଉପରେ ଗୋଟେ ଏସେ ଟପିକ ପ୍ରିପେୟାର କରିକି ଯାଅ ଓକେ ତ ଯେମିତି କି ଦେଖିବ 2017 ଆଉ 18ରେ 16 ଆଉ 17ରେ ଏସେ ବି ରିପିଟ ହେଇଥିଲା ଟୁୱାର୍ଡସ ଗ୍ରୀନ ଇକୋନୋମି ନା ଟୁୱାର୍ଡସ ଗ୍ରୀନ ଇକୋନୋମି 2 ବର୍ଷ ଯାକ ସେମ क्वेश्चन विदाउट ऑप्शन चेंज रे भी एसए भी रिपीट हुए ओके ओपीएससी रे तो लास्ट तक ଯଦି ଦେଖିବ ଯେ ପ୍ରତି ବର୍ଷ ତମେ କ୍ୟାଟାଗୋରାଇଜ କରିବ ଯେ ମୁଁ କୋଉ କୋଉ ସେକ୍ଟରରୁ ମୁଁ ଏସଏ କୁ ପ୍ରିପେୟାର କରିବି ଯେମିତି କି ଏନଭାୟରନମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଡେଫିନେଟଲି ଗୋଟେ ମୁଁ ଟପିକ କରିବି ଗୋଟେ ସୋସିଆଲ ଇସ୍ୟୁ ହେଲା ଯେମିତି କି ଏଜୁକେସନ ହେଲା ହେଲ୍ଥ ହେଲା ଏଗ୍ରିକଲଚର ହେଲା ତ ଆ ଉପରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଟପିକ ଟେ ଯୋଉ ଡିସ୍କସନ ମାନେ ପ୍ରିପେୟାର କରିଥିବି ଯେମିତି ଡିଜାଷ୍ଟର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ହେଲା ତ ଡିଜାଷ୍ଟର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଉପରୁ 2-3 ଥର क्वेश्चन ପଡିଲାଣି ତ ଡିଜାଷ୍ଟର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଉପରେ ତ ଡିଫରେଣ୍ଟ କ୍ୟାଟାଗୋରୀକୁ ଫୋକସ କରିକି କର ଏନଭାୟରନମେଣ୍ଟ କ୍ଲାଇମେଟ ଚେଞ୍ଜ ଉପରେ ଗୋଟେ ତାପରେ ତମର ସୋସିଆଲ ଇସ୍ୟୁ ଉପରେ ଆଇଦର ଏଜୁକେସନ ପ୍ରଭର୍ଟି ଓମେନ ଏମ୍ପାୱରମେଣ୍ଟ ହେଲ୍ଥ ତା ଉପରେ ଗୋଟେ ଟପିକ ତମେ କରିବ କିମ୍ବା ତମେ କଣ କରିବ ନା ଆମର ଡିଜାଷ୍ଟର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଉପରେ ହେଲା ଆଉ ଯୋଉଗୁଡାକ ଗୋଟେ ମାନେ ପୁରା ଆବଷ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଯେମିତି ଆମର କୁହାଉଛି ଗୋଟେ ସେ ଯୋଉ ଦିଆଯାଇଥିବ ଗୋଟେ ଫ୍ଲୋ ବାର ଭଳିଆ ଦିଆଯାଇଥିବ ତାଙ୍କୁ କୁହାଯିବ କରିବା ଯୋଉ ଏକ୍ସପାଣ୍ଡ କରିକି ତମେ ଯାହା କରିବ କିମ୍ବା ଆମର ଗୋଟେ ଜିଓ ପଲିଟିକାଲ ଇସ୍ୟୁ ଉପରେ ଆମର ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଡୁଛି ଓକେ ତ ଏଇ ଡିଫରେଣ୍ଟ 4-5ଟା କ୍ୟାଟାଗୋରୀ ଅଛି ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆମର କଣ ହଉଛି ନା ତମେ ଟ୍ରାଏ କରିବ କରିବା ପାଇଁ ତ ଆଜି ଗୋଟେ ଆମେ କରିବା ଯୋଉଟା କି ଆମେ କହିବା ରିଲେଟେଡ ଟୁ ଗୋଟେ ଆମର ଏନଭାୟରନମେଣ୍ଟ ଉପରେ ଆମର ଗୋଟେ ଟପିକ ଆମେ କରିବା ଓକେ so let me share the screen आई थिंक ମୁଁ ତମକୁ ଗୋଟେ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରିଥିଲି ଓକେ ଏନଭାୟରନମେଣ୍ଟ ଆଉ କ୍ଲାଇମେଟ ଚେଞ୍ଜ ଉପରେ ଗୋଟେ ଆମେ ଯଦି କରିବା ଗୋଟେ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଇଏ ଓକେ ଭିଜନାଇଜର ଗୋଟେ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଯୋଉଥିରେ କି ପୁରା ରେଡିମେଡ ତମର ବହୁତ ଗୁଡେ ପଏଣ୍ଟସ ତମେ ପାଇପାରିବ ଓକେ ଏଇ ଯୋଉ ଏନଭାୟରନମେଣ୍ଟ ଆଉ ଯୋଉ କ୍ଲାଇମେଟ ଚେଞ୍ଜ ଉପରେ ସୋ କ୍ଲାଇମେଟ ଚେଞ୍ଜ ଉପରେ ଯଦି ପଡିବ ଆଉ ଏଇଟା ବହୁତ ହଟ୍ ନ୍ୟୁଜରେ ଅଛି କ୍ଲାଇମେଟ ଚେଞ୍ଜ ହେଲା ଏବେ ଆମର ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଆମର COP26 ହେଲା କି ଇଣ୍ଡିଆ ଆମର ପଞ୍ଚମ କଥା କହୁଛି କି ଆମର ଟୋଟାଲ ଯୋଉ ବି ଦେଖିବ
कहीं मुझे गोटे कहूँ ए वर्षर हट टपिक सबुठी G20 रे भी हमर क्लाइमेट चेंज ऊपर डिस्कशन करा हैतला, G7 रे भी हमर क्लाइमेट चेंज ऊपर डिस्कशन करा हैतला, ब्रिक्स 2021 रे भी क्लाइमेट चेंज ऊपर गोटे जो इम्पोर्टेंट हमर आउटकम रे थिला। तो सबू जो बर्तन इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म रे जहाँ भी होची क्लाइमेट चेंज होची गोटे हॉट टॉपिक। ଆଉ ଓପିଏସସି ଯଦି ଏनवायरमेंट ଉପରେ ଯଦି क्वेश्चन जोडी पचारिबो ओके तो तमरा क्लाइमेट चेंज ଉପରେ तमे डेफिनेटली गोटे एसे प्रिपेयर करिथिबो प्लस हमर जो एनवायरमेंट उपरो आउ गोटे हमर होची जेमति कि हमर सस्टेनेबल डेवलपमेंट और क्लाइमेट चेंज ए दीटा का टॉपिक ଉପରେ तमे डेफिनेटली माने प्रिपेयर करिबो जोटा कि निहाती गोटे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन तमे वर्ष पाइबार बहुत संभावना अछि ओके। तो डेफिनेटली मैं क्लाइमेट चेंज ऊपर डिस्कशन करबा टिल नाउ कोन कोन क्वेश्चन पडितला यूपीएससी रे क्वेश्चन पडितला क्लाइमेट चेंज रो गोटे पडितला जे इकोलॉजिकल कंसीडरेशन डिड Sir, नॉट can I raise one sensible query? This is Rashmita Acharya on this side. Good या evening, sir. या या Yes, sir. Sir, I do have one sensible query regarding to essay writing. That is what? So, usually in a compulsory essay, we used to start with one intro para, then obvious one if it would be kind of case study or anecdotal account. So, on the very first page, we used to mention like, three paragraphs. So like, suppose like the kind of one essay, exclusive essay paper, in that particular paper also, sir, we need to like, suppose we want to linger for one more paragraph for the introduction part, then if I would like to cite or quote two kind of anecdotal account or case studies, will that be okay, or I need to, sir, sum up even on the very first page? No, no. You are absolutely correct, Sasmita. So you can start with an anecdote, or you can start with some data, fact, figure, and data, like some according to some World Bank data or NSO data, or something related to fact and figure. Also, you need to start. You can start with some some quotation also. Okay. So am I required to sum up that in one paragraph? Like, in compulsory paper, like if when we are attempting any essay questions, our normal pattern is what we used to do, that we need to sum up that within one page. Suppose the very first page, we are writing the first paragraph intro, second one usually any case studies if at all we are getting, or any anecdotes. Then normally we are introducing, like, we are connecting with the coherence, we are connecting with the ideas. Subsequently, we are, yes. So like, sir, suppose this could be a very long essay. I'm talking about the particular essay paper. So in that case also we have to do accordingly. Like the only first para could be introduction, and the second para can we if we want to drag. Yeah. Suppose we do have like, lots facts, or could be even kind. I would love to, if at all I would be getting a chance that yes, the topic would be of my domain and I want to write. So in that regard, sir, can I quote like two, three more definitions, or might be like could be like, if I can quote, or I can put some sort of definition by quoting some others quote. So in that way, Okay. will it be okay, sir? Yeah, that will be okay because one more thing you have to remember, like ଯେତେବେଳେ ବି ଆମେ ଯୋଉ essay ଟାକୁ we are writing, the connection between one para to another para should be there. So it Yeah, is yes, not like that. that part subsequently I would be doing. So my Yeah, point of concern is what, that yeah, if at all I'm writing, so the first paragraph only would be an introduction paragraph, or can I linger it that too for a page? Suppose I want to give yeah. No, one. no, not a like. There is no restriction like in Okay, essay sir. paper. There is no restriction. You can put your thought like the anecdote. You can start with anecdote along with the quotation, along with the like data also. Let it be half page, no issue. But the Okay. connection, I am telling about the connection to the next para. It should be like a episode. What happened in the previous episode and what in the next episode. Like a we are like serial. I mean, we are watching. Yes, So yes, what sir. will be the Acknowledge, next? acknowledge, sir. Yes. That connection and that connection
from the one para to another para should be there. Okay, तो ସେଇଟା ନିହାତି ଆମର ଯୋଉ ଏସେ ରେ ଓକେ ଏସେ ରେ ତ ଆମେ ବହୁତ ମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହଉଛି ଯେ ନାଇଁ ତମର ଯେତେବେଳେ ଏସେଟା ଲେଖୁଛ ଆମେ ଆଗରୁ ବି ଡିସ୍କସନ କରିଥିଲେ ଓକେ ସିଧା ଜମ୍ପ କରିଯିବନି କି ମତେ ଏଇ ଏସେଟା ଲିଖିବାର ଅଛି ସୋ ଲେଟ୍ ତମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କର ମାଇଣ୍ଡ ମ୍ୟାପ୍ କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କର ବ୍ୟାକ୍ ଅଫ୍ ଦ ପେଜ ରେ କି ୟା ପାଖରେ ଯୋଉ ଏସେଟାକୁ ମୁଁ ଚୁଜ୍ କରିବି whether I have the sufficient point with me କି ମୁଁ ଏଟାକୁ ଲେଖିଲେ ସବୁ ଆଙ୍ଗେଲ ରୁ କନେକ୍ଟ କରିକି ଲେଖିପାରିବି କି ନାହିଁ ତ ସେଇଟା ଗୋଟେ କର ନାହିଁ କି ଏମିତି ତମେ ଏସେ ଗୋଟେ ଚୁଜ୍ କଲ ମୁଁ ତରବରରେ ଲେଖିବା ଲେଟ୍ ଇଟ୍ ବି 10 ମିନିଟ୍ ନିଅ 12 ମିନିଟ୍ ନିଅ ନେଇ ସାରିଲା ପରେ ତମେ ସେ ଏସେଟା ପୁରା ତମେ ଭାବୁଛ ଯେ ମୁଁ ଏଇ ଆଙ୍ଗେଲ ରେ ଲେଖିବି ସଫିସିଏଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ତମେ ମ୍ୟାପ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆସିବ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଓକେ ତ ସେଇଟା Noted, sir. ରହିବା ଦରକାର ଆଉ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଲେଖିବ ଏମିତି ନ ହଉ କି ତମେ ଯୋଉ ଅଧଘଣ୍ଟେ ପରେ ତମକୁ ଲାଗିବ ଯେ ଲେଖୁଛି ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଲାଗିବ ଯେ ନାଇଁ ମୁଁ ଏଇଟା ମୁଁ ମୋ ପାଖରେ ତ ପଏଣ୍ଟ ହିଁ ସରିଗଲା ଆଉ କଣ ଲେଖିବି ତ ଆଉ ଗୋଟେ 12ଟା ଲେଖିଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା ଏମିତି ବି ପରୀକ୍ଷାରେ ସିଚୁଏସନ ଆସିବ ତେଣୁ ଯୋଉଟା ଚୁଜ୍ କରିବ କେୟାରଫୁଲି ଚୁଜ୍ କର ଆଉ ସେଇଟାକୁ ତମ ପାଖରେ ଯେତେ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଯେ ଆମର 200 ମାର୍କ ଲେଖିଲା ଭଳିଆ କି ତମ ପାଖରେ ସଫିସିଏଣ୍ଟ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ରହିବା Agreed, agreed, sir. Thank you so much, sir. Thank you. ଓକେ ତ Sir, ଏଇଥିରେ ଆମେ excuse me, sir. Excuse me, ବିଶ୍ୱାସ sir. ହୁଁ Sir, essay writing, it won't be similar in every essay, sir. For example, in a essay like abstract essay or something, a proverb essay, we can also start in storytelling way. It is wasn't that we have to start with introduction and body, then conclusion, isn't it? ହଁ ଡେଫିନେଟଲି ଦେଖ ଏସେରେ ତମର ମାନେ ଆମର ଆବଷ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଏସେ ତମେ ଯେତେବେଳେ କହୁଛ ଗୋଟେ ଆମର ପୁରା ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଦେଇଛି ଆଉ ତମେ ତାକୁ ଏକ୍ସପାଣ୍ଡ କରିକି ଲେଖିବାର ଅଛି ତମର ଥିଙ୍କିଂ କଣ ଓକେ ତ ମାନେ ୱେ ତମର ଏମିତି ନାହିଁ କି ଯେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ ବଡି ଆଉ କନକ୍ଲୁଜନ ଏମିତି ତମର ତ ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ତମର ରହିବ ଗୋଟେ ଯେତେବେଳେ ଏସେ ଲେଖୁଛ ସବୁ ଆଙ୍ଗେଲକୁ ତମେ ଭାବିକି ତ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ ମାନେ ମୋ କହିବା କଥା ହଉଛି ଯେ ତମେ ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବ କିଛି କୋଟେସନ ଦଉଛ କି ଆନେକ୍ଡୋଟ ଦଉଛ କିମ୍ବା ତମର ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛ ଡାଟାର ତ କିଛି ଆଗ ପ୍ରଥମେ ସେ ଯୋଉ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ରୁ ଆମର ଗୋଟେ ବେସିକ ତା ଉପରେ ଆମର ଆଇଡିଆ ତମେ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରିବ କି ସେଇଟା ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାର ଯୋଉ କନେକ୍ସନ ବନେଇକି ତମର ବଡି ପାର୍ଟରେ ରଖିବ ଆଉ ଫାଇନାଲି କନକ୍ଲୁଜନ ଯୋଉ ଦବ ଓକେ ଇଭିନ ଇଫ ତମେ ଯୋଉ ଆବଷ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ରେ ରଖୁଛ ଓକେ ତମର ଥିଙ୍କିଂ କଣ ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର ସବଜେକ୍ଟ ଉପରେ ଓକେ ତ ଏଇଥିରେ ମାନେ ଟୋଟାଲ ଡିପେଣ୍ଡ ଅପନ୍ ଦ ପର୍ସନ ଓକେ ତ ସିଏ କୋଉ ଭଳିଆ ଆବଷ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଟପିକ ରେ କୋଉ ଭଳିଆ ଭାବୁଛି କଣ ଲେଖୁଛି ଇଭିନ ତମେ ଦେଖିଥିବ ବହୁତ ଟପର ମାନଙ୍କର ଏସେ ଦେଖିବ ଇଟ୍ ଇଜ ଟୋଟାଲି ଡିପେଣ୍ଡ ଅପନ୍ ଦେୟାର ଥିଙ୍କିଂ ଯୋଉ ଭଳିଆ ଲେଖିବ ଏମିତି ପିଲା ତ କହୁଛନ୍ତି ମୋ ମନକୁ ଯାହା ଆସିଲା ମୁଁ ଲେଖିଲି ଓକେ ସେଥିରେ ବି ସେମାନେ ବେଟର ମାର୍କ Sir, ନେଇପାରୁଛନ୍ତି sir, another dilemma we face, sir. Uh, Currently, many of the toppers they suggested that the OPSC essay are written in point format. Is that possible, sir, or we have to write only in paragraphs? ମୁଁ କେତେ ଜଣଙ୍କଠୁ ଶୁଣିଛି ପଏଣ୍ଟ ଫର୍ମାଟରେ ଲେଖିକି 139 ମାର୍କ ରଖିଥିଲେ ଓକେ ତ ୟୁପିଏସସି ରେ ଏନିଥିଙ୍ଗ ମାନେ କିନ୍ତୁ ତମେ ଯଦି ପଏଣ୍ଟ ଫର୍ମାଟରେ ଲେଖିବ ୟୁପିଏସସି ରେ ଇଟ୍ ଇଜ ଜିରୋ ସିଧା ଜିରୋ ଦେଇଦେବେ ଓକେ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ନଟ୍ ଦ ମାନେ ଫର୍ମାଟ କି ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର କିନ୍ତୁ ଓପିଏସସି ରେ ପିଲାମାନେ ପଏଣ୍ଟ ଫର୍ମାଟରେ ଲେଖିକି ଭଲ ମାର୍କ ଆଣିଛନ୍ତି ବୋଲି ଆଇ ଡିଡଣ୍ଟ ସି ଏନି ପେପର ଓକେ ତ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବହୁତ ପିଲାଙ୍କଠୁ ଶୁଣିଛି ଯୋଉମାନେ କି ଅଲରେଡି ସେ କହୁଥିଲେ କି ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏମିତି ଲେଖିକି ଯେ ପଏଣ୍ଟ ଫର୍ମାଟରେ ଲେଖିକି ଏନିୱାନ୍ नो କି ପଏଣ୍ଟ ଫର୍ମାଟରେ ଲେଖିକି ଆମର ବେଟର ମାର୍କ ପାଇଛନ୍ତି Yes, sir. ପଏଣ୍ଟ ଫର୍ମାଟରେ ଲେଖିକି Sir, Yes, sir. ଗତ ଥର ସାର୍ ଇକୋନୋମିକ ଉପରେ ସାର୍ ପଡିଥିଲା ଏସେ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଜଣେ ସାଙ୍ଗ ମୋର ସେ ପୁରା ପଏଣ୍ଟ ଫର୍ମାଟରେ ଲେଖିଥିଲେ ଆଉ 130 ମାର୍କ୍ସ ଆଣିଛନ୍ତି। ହୁଁ ଆଉ କିଏ ଜାଣିଛ ପଏଣ୍ଟ ଫର୍ମାଟ ଲେଖିଥିଲ ଓକେ ତ ଏମିତି ମାନେ ମୁଁ ବି ଶୁଣିଛି ଯେ ପଏଣ୍ଟ ଫର୍ମାଟରେ ଲେଖିକି ବି ୟୁପିଏସସି ରେ ମାର୍କ ମିଳୁଛି ଓକେ ଏନିୱେ ପଏଣ୍ଟରେ ଲେଖିଲେ ତ ଖାତା ସରିବନି ମାନେ ସେତିକି ୱାର୍ଡ ସଂଖ୍ୟା ଆମେ ଆଚିଭ୍ କରିପାରିବାନି ଏସେ ଆମେ ଜେନେରାଲି ଭାବୁ କି ସେଇ ଆଇଡିଆଜକୁ ଟିକେ ଷ୍ଟ୍ରେଚ୍ କରିକି ଆଗକୁ ଯିବାର ଅଛି ଆଉ ଯଦି ପଏଣ୍ଟରେ ଲେଖିବା ମେ ବି କୌଣସି ଫ୍ୟାକ୍ଟକୁ ଯଦି ପଏଣ୍ଟରେ ଦେବା ପାଇଁ ଠିକ୍ ଲାଗିବ କିନ୍ତୁ ପଏଣ୍ଟରେ ଲେଖିଲେ so ମତେ let's ଲାଗୁନି start ଯେ ପ୍ରିଭିୟସ ମାନେ ପଏଣ୍ଟ ସହିତ ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟର କିଛି ଲିଙ୍କ ରହିବ ଏମିତି କିଛି ମାନେ ଯାହା ବି ମୁଣ୍ଡକୁ ଆସିଲା ସେଇଆକୁ ଲେଖିଲା ବେଳକୁ ମାନେ ରିଲେସନ ହିଁ କିଛି ରହିବନି ମତେ ଲାଗୁଛି। So okay those who are Yes, sir. scoring 130 or more,
Are they like writing the whole essay in point wise or only a few part, few segment when it is required? नहीं few part few segment तमे point wise लिखियो कोठी भी तमे लिखि परिबो paragraph रे कोठी भी point format रे किंतु ओपीएससी रे एमिति भी पिला point format रे लिखि कि भलो मार्क नै के आछन ओके सो मो मतरे सेफ साइड पई तमे हेडिंग्स जदी भी देई कि भी तमे जदी गोटे paragraph wise करिक लिखियो भी that is okay So किंतु that means, पूरा sir, you were suggesting that paraphrasing would be there. Along with that, if it is required, we can mention few points. ये All पॉइंट right. सेमिति करिवो कि मिक्स टाइप रो तमरो करिवो ओके टोटल हमर पॉइंट वाइज की Yes, sir, it's absolutely impossible even to make the whole essay इनटू to पॉइंट माने make it in a जीएस रो bullet काला form. आंसर बोले ले जो ओके Yes, sir. सो इतरे देखिबा इतरे कोन क्वेश्चन पडिछि से लेट्स कंप्लीट द टॉपिक जोटा कि हमर जोटा क्लाइमेट चेंज ऊपर तो कोन कंटेंट रखियो ओटे क्वेश्चन पडितला जे इकोलॉजिकल कंसीडरेशन need not hamper development तो एटा 1993 रे पडितला urbanization is a blessing in disguise. Protection of ecology and environment is essential for sustained economic development. Then urbanization and its hazards. Should a moratorium be imposed all fresh mining in the tribal area of the country? So all are related to our climate change related जो essay तो जोड़ा पढ़ितला तो एथिरे तुम जदि लिखिबो भी माने आगो जदि किछि गोटे फेमस कोटेशन और पर्सनालिटी जो फेमस पर्सनालिटी कर कोटेशन लिखिबो तुम लिखि परिबो जे एक गुडा दिया जायछि तो वन ऑफ द माने तुम नै परिबो जे a nation that destroys its soil destroys itself. Forests are the lungs of our land, purifying the air and giving fresh strength to our people. So Franklin D. Roosevelt, how would we won't have a society if we destroy the environment. Okay, Margaret Mead. तो केते गुडे माने टॉपिक तमे मने रखिथिबो पॉइंट्स गुडाक जोडा कि हमर कोन होची तमे मेंशन करि परिबो ओके एटा भी लिखि परिबो we don't have we do not inherit the earth from our ancestor we borrow it from our children एटा गुडे लिखि परिबो ओके one of the first condition of the happiness is that the link between man and the nature shall not be broken. Leo Tolstoy. Tapare the best time to plant a tree was 20 years ago. The next best time is today. Okay, এটা ଗୋଟେ Chinese proverb. ତା ଉପରେ ତମେ ଏମିତି କିଛି ଲେଖିକି ତମେ ଆ ଭିତରୁ ଗୋଟେ କି ଦିଟା ତମେ ଯୋଉ କୋଟେସନ ଦେଇକି ତାପରେ ତମେ ଡାଟା ଦେଇପାରିବ ଏଭିଡେନ୍ସ ରିଲେଟେଡ टू क्लाइमेट चेंज हमें जानी चाहिए हमारा जो आईपीसीसी तो आईपीसीसी रो जो डाटा अनुसार द एवरेज टेम्परेचर ऑफ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर during the second half of the 20th century is very like to higher than in the past 500 years दे देखि परिबा जे हमरो इवन इफ आईपीसीसी रिपोर्ट देछि जे हमरो जो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर एटा डेफिनेटली 1.5 डिग्री ऊपर को जाउछि out 21 century end of the 21 century सुधा there are a lot of disaster आसीबो ओके जेमति कि ए जो ड्यू टू दिस क्लाइमेट चेंज हमर टेम्परेचर राइज जो क्लाइमेट चेंज हबो हमें देखिबा कोन कोन हमर जेमति कि हमें जनरल हमें भाबुचे जे कोन ना इराटिक रेनफॉल तो धरि कि हमर आइस मेल्ट हबो जो पोलर आइस उडा मेल्ट हबो सी जो वाटर लेवल अछि हमर जो सी रो वाटर लेवल राइज हम तो ये सब गुडा को हमर ड्यू टू हमर क्लाइमेट चेंज को हे परिबो तो एथि तमे डाटा दबो जे तो कोन माने गोटे ऑथेंटिक डाटा दबो कि आईपीसी अनुसार द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ड्यूरिंग सेकंड हाफ ऑफ 20th century would very like to higher than in the last 500 years okay तो एथिरे कोहा होची जे आईपीसीसी has pointed out the atmospheric concentration of the carbon dioxide exceeded by the natural range over 6,50,000 years. Okay. So, तापरे हमरो cryosphere continues to sink. The rate of Antarctic ice mass lost has tripled in the last decade. Global sea level rise by 8 inches in the last century. Ocean acidification. The amount of the carbon dioxide absorbed by the upper layer of the ocean is increased by about 2 billion ton per year.
ओके स्टेट ऑफ द ग्लोबल रिपोर्ट 2017 जो थे कि एटमॉस्फेरिक मीथेन reached a new high and is now 257% of the pre-industrial level. Okay तो एमिति कौन होची ना आमे गोटे डाटा दे परिबे जे कौन कौन हमरो सम ऑथेंटिक डाटा दे परिबे कि हमरो एबे हमर जो कहूची जे हमरो डेफिनेटली 1.5 डिग्री टेंपरेचर बढ़िबो आउ कौन कौन तार जोडे कि हमरो लास्ट 500 इयर्स रे हिनतला सेही ताट भी हायर देन हमर टेंपरेचर एटमॉस्फेयर रे बढ़ुची ओके कार्बन डाइऑक्साइड रो जो कंसंट्रेशन एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड रो कंसंट्रेशन हमरो जो नेचुरल रेंज हमरो जो कहबा लास्ट 6,50,000 इयर्स ताट भी एटा एक्सीड होची ओके टेम्परेचर राइज जो हमरो आइस अंटार्कटिका आइस मेल्ट होची जा जो मेल्ट जो हमरो सी लेवल रो जो हमरो सी लेवल रो हमरो जो वाटर लेवल हमें कहूचे तार अराउंड 8 इंचेस एटा हमरो बढ़ीची ओके ओशन एसिडिफिकेशन होची तो ये जो क्लाइमेट जो ड्राइवर हमें कहूचे जे ग्लोबल जो एवरेज टेम्परेचर हमरो ऑलरेडी हमरो 1.5 डिग्री बढ़े बोली आईपीसी देची तो हायर देन इट वाज इन द जो लेट 19th सेंचुरी कौन कौन कॉज तमरो जस्ट तम एटा मन रखिदा किछि फ्यू पॉइंट्स जोटा कि हमरो एक तो नेचुरल कॉज को थी जो क्लाइमेट चेंज होची गुडा नेचुरल कॉज रहला ओडे ह्यूमन इंटरफेरेंस जो एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज जो रहउची नेचुरल कॉज कोन ना वेरिएशन इन द सोलर रेडिएशन तापर हमरो मूवमेंट ऑफ द हमरो जो प्लेट टेक्टोनिक रे हमरो जो क्रिस्टल प्लेट्स गुडा को तार मूवमेंट जो एलिनो जो होची ऑर्बिटल चेंजेस जो होची वोल्केनिक इरप्शन जो होची ओके तो एडा हो हमरो नेचुरल कॉज तापर एंथ्रोपोजेनिक कॉज कोन ना डेफिनेटली ग्रीन हाउस गैस एमिशन ओके तो क्लाइमेट चेंज रो मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर हला जे जो ग्रीन हाउस गैस तो जो ग्रीन हाउस गैस जोड़ा हमें कहले कार्बन डाइऑक्साइड हला कि मीथेन हला कि नाइट्रस ऑक्साइड हला कि सल्फर हेक्साफ्लोराइड हला किबा हमें ओजोन लेयर भी हला तो सेतेबेला हमर कोन होछि ना ए जो गैस जोड़ा एटमॉस्फेयर को जाउ छंती सो दे ट्रैप द इनकमिंग सोलर जोड़ा हमर जो सोलर रेडिएशन होछि ताको ट्रैप करू छंती आ एटमॉस्फेयर टेंपरेचर को बढ़ौ छंती तो एटा ग्रीन हाउस गैस एमिशन वन ऑफ द इंपोर्टेंट कॉज जे कि हीट ट्रैपिंग एमिशन द ए जो ग्रीन हाउस गैस ता कोठो बाहर अछि जनरली थर्मल पावर प्लांट जोटा का बर्निंग ऑफ द कोल होछि गैस होछि ऑयल होछि इन द पावर प्लांट वेहिकुलर एमिशन तो जोटा कि हमरो ट्रांसपोर्टेशन रो बाहर छि कार हमरो कार हला बस हला ट्रक ए गुडा करू तो कार्स कटिंग डाउन एंड बर्निंग द फॉरेस्ट कारण फॉरेस्ट इज ए इंपोर्टेंट सोर्स जोटा कि इंपोर्टेंट हमें कहिबा गोटे जो फैक्टर रहउची फॉरेस्ट हमर कोन होची ना कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व करि नउची ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस जदि हमें ताकू डिस्ट्रॉय करिबा ताहाले से जो कार्बन डाइऑक्साइड रो जो हमें कहूचे आज एक्ट एज ए कार्बन सिंक हिसाब रे सेटा काम करि परिबनी ओके ऑब्जर्व करि परिबनी ओके तो कटिंग डाउन और बर्निंग ऑफ द फॉरेस्ट जेतल होची तो डेफिनेटली एटा हमर कोन ना ग्रीन हमें कहिबो जे क्लाइमेट चेंज और ग्रीन हाउस एमिशन उडा जो गैस उडा को ऑब्जर्व करि परिबनी ओके तापरे टिनी जो पॉल्यूशन हमर जो पार्टिकल्स होची एरोसॉल रहला तापरे ब्लैक कार्बन पॉल्यूशन रहला तो एउडा हमर होची फर्स्ट होची एंथ्रोपोजेनिक कॉज कोन ना ग्रीन हाउस एमिशन होते चेंज इन द लैंड यूज पैटर्न it bring about the changes in the surface at जो albedo हमरो जो कहूची जे हमरो जो केते जो हीट को हमरो कोन होची ना रिफ्लेक्ट करा जाउची ओके तापरे डिफॉरेस्टेशन में देखिले जे lead to the change of evaporation of the rate of the soil and moisture characteristics so desertification also increase the surface albedo तापरे हमें देखिबा increase in the livestock farming the cows and sheep produces large amount of methane when they digest their food तो सेमाने भी हमरो जतल इंक्रीज द लाइवस्टॉक फार्मिंग जदि हमें करबा सेतु अभी हमरो कोन ना मीथेन रो जनरेशन होई जोडे के हमर ग्रीन हाउस गैसेस होते फर्टिलाइजर जो containing the nitrogen so they are produce nitrous oxide मु कहली ग्रीन हाउस गैस पूरा ना कार्बन डाइऑक्साइड मीथेन नाइट्रस ऑक्साइड तो जो सोर्स रे गैस उडा को बाहर होची डेफिनेटली हमर जो कोन हबो ना जो एटमॉस्फेयर टेंपरेचर बढ़ेबा हमरा हमें कहिबा जे क्लाइमेट ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज हबो ओके फ्लोरिनेटेड गैस तो एडा होचे हमरा कोन ना एंथ्रोपोजेनिक माने मैन मेड कॉजेस
गोटे नेचुरल कॉज आम कौन ना वोल्केनिक इरप्शन एल निनो जो प्लेट मूवमेंट तापर हमरो वेरिएशन इन द सोलर रेडिएशन हमरो एंथ्रोपोजेनिक रे एगुडा को तमे लिखिबो जे ग्रीन हाउस गैस एमिशन तापर लैंड पैटर्न यूज जो कराउची डिफॉरेस्टेशन लाइवस्टॉक फार्मिंग इंक्रीज होची तापर फर्टिलाइजर जो थे नाइट्रोजन कंटेंट होची क्लोरिनेटेड गैस तो तमे इंट्रोडक्शन में हमरो लिखले कोन ना किछि डाटा हमें देले गोटे दीटा तमे इथरु पॉइंट्स माने जो फ्लो रखिलो तमरो ओके कोटेशन रखिलो कोटेशन पर किछि डाटा देलो डाटा पर आमे किछि एठी हमें कोन कले ना जस्ट हमें कहूचे कॉज कोन हमरो जो क्लाइमेट चेंज रो तो तापर देखिबो ना क्लाइमेट चेंज रो इंपैक्ट कोन रहउछ हमरो जे एनवायरनमेंट ऊपर इंपैक्ट कोन रहउची हमरो अलगा जस्ट मिनिट ओके तो एनवायरनमेंट ऊपर हमरो कोन इंपैक्ट रहउची तो हमरो तापर हमें देखिबा जे ह्यूमन ऊपर कोन रहउची ना टोटल एकरे फास्ट होची क्लाइमेट चेंज को एनवायरनमेंट ऊपर हमरो कोन इंपैक्ट होची तो राइज इन द एक्सट्रीम वेदर इवेंट ओके तो हमरो एक्सट्रीम हमरो वेदर इवेंट होची जेमति कि हमें कहिबा ई क्लाइमेट चेंज को ग्लोबल टेम्परेचर हमरो बढ़ुची अकम्पनीड बाय changes in the weather and climate like हमरो erratic rainfall हबो changes in rainfall pattern हला तापर हमरो फ्लड हबो जदि हमरो देखो रेनफॉल पैटर्न रे चेंजेस ला erratic रेनफॉल जो जेतले वर्षा हबा कथा नहे सेतले प्रबल वर्षा हबो जेतले वर्षा हबा कथा सेतले बिल्कुल वर्षा हबनी तो फ्लड आउ बोथ ड्रॉट एगुडा का हमरो अकर हबो ओके सो राइज इन द एक्सट्रीम वेदर इवेंट तो erratic रेनफॉल हबो व्हिच लीड्स टू हमारा फ्लड हबो आ जदि बिल्कुल वर्षा न होला ताले ड्रॉट हबो तो और इंटेंस रेनफॉल एज वेल एज मोर फ्रीक्वेंट एंड सीवियर हीट वेव हबो मैं वर्तमान एबे देखि परउथबो ओके वर्तमान सिचुएशन को भले होचे दिस इज ए कॉज माने गोटे क्लासिक एग्जांपल ऑफ हमरो क्लाइमेट चेंज माने जति कि नॉर्मल हमरो माने ठंडा कोल्ड न रहइबा कथा त मुला अपनी के धरो इथरा हमरो बहुत ठंडा लागुची बोली ओके तो एटा भी हमरो गोटे जो कॉज ऑफ हमरो जो climate change ro okay so changes in the precipitation pattern also be more pronounced तापर accelerated sea level rise तमर जेतोल टेम्परेचर बढ़ुची ताले इरा हमरो जदी हेवी रेनफॉल होला किबा हमरो जदी टेम्परेचर बढ़िवा जगु कि हमरो आइस गुडा का मेल्ट हबो तो सी लेवल बढ़िबो तो ग्लोबल सी लेवल risen by 8 inches since 1882 so as a result of added water from the melting ice and expansion of the seawater as it warms. So sea level is projected to rise another 1 to 4 feet by 2100. So 2100 बेलकू तो 1 ରୁ 4 फीट बढ़िबा तो भाबो जदी 4 फीट बढ़िला ताले सी लेवल जदी राइज कला जो आइलैंड कंट्री अछंती तो तांकर कोन हो तो मेनी ऑफ द आइलैंड कंट्री दे आर इन फियर मे बी दे मे बी सबमर्ज्ड इन वाटर by 21 end of the 21st century okay तो तापर हमें देखिबा जे हमरो ओशन एसिडिफिकेशन होची जे जो planets ocean the planets ocean of glacier have also experienced some big challenges the oceans are warming and become more acidic ice cap are melting and sea level are rising however so तमे एटा डेफिनेटली गोटे क्लाइमेट चेंज आउ ग्लोबल वार्मिंग ऊपर निहाती गोटे से टॉपिक प्रिपेयर करो कारण बहुत चांस अछि आसीबार ओके तापर हमर होची कोन ना तमरो इकोसिस्टम एट रिस्क ओके इंक्रीज टेम्परेचर आर चेंजिंग वेदर तापर एंड वेजिटेशन पैटर्न अक्रॉस द ग्लोब फोर्सिंग एनिमल स्पीशीज टू माइग्रेट टू न्यू जदी हमर अधिक जदी वेदर चेंज हला किबा वेजिटेशन पैटर्न ने जदी हमर चेंजेस आसला तो डेफिनेटली कोन हबो ना स्पीशीज गुडा को माइग्रेट करिवे सो कूलर एरिया in order to survive the cooler area in order to survive and plant and animal ranges are shifted and the trees are flowering soon okay threat to survive species survival a rapid change in climate change is also like to exceed the ability of many species to migrate to unadjust जदी हमरो साइबेरिया हमरो चिलिका को काहे कि सित नेते हमरो डिफरेंट वेराइटी रो माइग्रेटरी बर्ड आसंदी काहे कि ना दोज एरिया जोडा का हमरो हला very colder area जेमति कि साइबेरिया एरिया रहला तो सेटू सेही सेति टेम्परेचर से माने कोन करि परंदी बियर करि परंदी कि दे हैव टू माइग्रेट टू सम अदर लोकेशन सेति पे से माने ओडिसा को आसंदी ओके जोटा को हमें कहछे प्राइवेट डेस्टिनेशन ऑफ एशिया ओके तो एगुडा को तमे
मेंशन करि परिबो ओके ओके तो एटा हमें देखले जे हमें ए जो क्लाइमेट चेंज जो हमें देखले जे कोन ना एनवायरनमेंट ऊपर कोन कोन हमर इफेक्ट पडुची तमे एटा गोटे पैराग्राफ करि परिके लिखि परिबो ओके जे तापर तमे कोन करिवो ना तमरो ह्यूमन हेल्थ ऊपर कोन पडुची जे ए जो क्लाइमेट चेंज जो व्हाट इज इट्स इफेक्ट ऑन द ह्यूमन हेल्थ तो मेन हला एते तमे इनलेस कहि परिबो जे 2008 रे फॉर एग्जांपल एक्सट्रीम हीट जो अराउंड 1500 लोकंगर डेथ हो जाइता इंडिया रे हमें सनस्ट्रोक जो कहू जदि एक्सेस हमर टेम्परेचर बढ़िबो खरा दिन जदि हमर टेम्परेचर 49 50 डिग्री हमर छुइबो तो डेफिनेटली लोक माने सनस्ट्रोक रे केते मन लोकंगर डेथ हो जिवो ओके तो तापर स्प्रेड ऑफ infectious diseases mainly because of the warmer temperature allow diseases carrying our insect animals microbes to survive in the area where they were once blocked by cold weather okay तो यहाँ भी हमारा स्प्रेड हमारा डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज हमारा ट्राई जो स्प्रेड हबो न्यू रीजन को सो स्प्रेड ऑफ डिजीजेस टू न्यू रीजन जेमिति कि diseases and pests that were once limited to tropics such as हमारा mosquitoes जो हमारा थिले तो से माने टॉपिक एरिया रे हमारा कोन ना जनरली ए माने देखांती that are carry malaria may find hospitable condition in new area that were once too cold to support them तो जोठी माने too cold थिला वर्तमान टेम्परेचर सेठी बढ़िबा जगु से एरिया को ए जो डिजीज गुडा को हमरा माइग्रेट करबो काहे कि ना मस्किटो से एरिया रे देखा जबे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एस्टिमेट करि छै जे क्लाइमेट चेंज मे हैव कॉज मोर देन 1,50,000 डेथ in the year 2000 alone with an increase in death like in future तो कौन पाई हमर क्लाइमेट चेंज जो ह्यूमन हेल्थ रे कौन कौन इफेक्ट पड़िबो तमरे ए डायग्राम तमे जानि परिबो जे राइजिंग टेम्परेचर ओके तमरा होची टेम्परेचर हमर राइजिंग टेम्परेचर हबो ओके तापरे मोर हमर एक्सट्रीम वेदर हबो तापरे राइजिंग सी लेवल हबो तापरे हमर इंक्रीजिंग हमर CO2 लेवल ओके तो राइजिंग टेम्परेचर जो हमें कौन ना सीवियर वेदर कंडीशन हबो तो आइथे हमें कौन हबो ना सीवियर वेदर कंडीशन जो हमरो डेफिनेटली हमरो ह्यूमन आउ फैटालिटीज हबो मेंटल हेल्थ इफेक्ट पकेबो सिमिलरली हमरो मोर एक्सट्रीम वेदर जो हमरो जदी हमें ए गुडा का तमे एयर पोल्यूशन हला चेंजेस इन द वेक्टर इकोलॉजी हला इंक्रीजिंग हमरो एलर्जेंस रहले वाटर क्वालिटी इंपैक्ट हबो वाटर और फूड सप्लाई इंपैक्ट हबो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हबो एक्सट्रीम हीट जो तो एगुडा कहू जे हमर कोन ना ता जो इफेक्ट पड़िबो तो आज को कोन ना हीट रिलेटेड जदी एक्सट्रीम हीट हला तो हीट रिलेटेड इलनेस हबो डेथ हबो कार्डियोवास्कुलर फेल्योर हबो तो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन जेमति कि पोस्ट माइग्रेशन हबे ओके तो एगुडा हमर पड़िबो वाटर और सप्लाई जदी फूड सप्लाई इंपैक्ट ऑफ मालन्यूट्रिशन और डायरिया डिजीज से परिबो ओके वाटर क्वालिटी जदी इंपैक्ट पकेला तो से डेफिनेटली हमर कलर हला कैस्ट्रोस्कोपिक हमर कैस्ट्रोस्टोडियस हमर डिजीज डिफरेंट अब हार्मफुल हमर आज algae booms हमर क्रिएट करा हबो क्रिएट हेबे ओके तो सिमिलरली हमर रेस्पिरेटरी डिजीजेस देखा जबो एयर पोल्यूशन हला अस्थमा कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस हबो ओके तापरे चेंजेस इन वेक्टर इकोलॉजी हमर हले मलेरिया डेंगू ओके तो एगुडा का हमर कोन हबो ना वेक्टर बॉर्न डिजीजेस एगुडा का हमर हबो ओके तो एटा हमर देखले त हमर ह्यूमन हेल्थ ऊपर कोन पडिला गोटे देखले जे क्लाइमेट चेंज जो हमें गोटे गोटे फैक्टर आगो देखु जे आगो इंट्रोडक्शन देले गोटे डाटा देले जे क्लाइमेट चेंज रो हमें आईपीसी डाटा देले तापर ए जो क्लाइमेट चेंज जो हमर एनवायरनमेंट रे कोन इफेक्ट पकेइबो ह्यूमन हेल्थ ऊपर कोन इफेक्ट पकेइबो तापर तमे लिखिबो जे एथिरे इकोनॉमिक लॉस कोन हबो तमे मेंशन करि परिबो जे ड्यू टू इफ नो एक्शन is taken to curtail the global emission the climate change could cost around 5 to 20% of the annual global gross domestic product okay in comparison it would take 1% of the GDP to lessen the most damaging effect of climate change जदि कोहा होचे जे किछि हमर एक्शन जदि न बा जो कार्बन एमिशन को कमै बारे तो एक क्लाइमेट चेंज हबा और जोटा कि हमर वर्ल्ड रो जीडीपी को हमर अराउंड 5 to 20%
जो annual जो global domestic product ऊपर effect पकेबो ओके ओके तो तापर हमर होची कोन एटा हमर गोटे वर्ल्ड बैंक गोटे डाटा देछि जे आज रिसेंट रिपोर्ट ऑफ वर्ल्ड बैंक फाउंड क्लाइमेट चेंज could effectively negate the economic progress and pushing 45 million Indians to extreme poverty over the next 15 years. The climate change जोगु 45 million Indians हमर extreme poverty line तलकु जिवे केमिति ना एक तो ड्रॉट हेले भी तांकर हमर जेहेतु एग्रीकल्चर होची इंडिया रो गोटे मोर हमें कहबा जे सबुठो एम्प्लॉयबल आम जदि कहबा जे 40 जो मोर देन 50% लोक डिपेंड अपन एग्रीकल्चर तो एग्रीकल्चर टा बोथ एक्चुअली वनरेबल ड्यू टू क्लाइमेट चेंज तमरो इराटिक रेनफॉल हेले भी एटा डिस्ट्रॉय हेबो फ्लड हेले भी आ जदि ड्रॉट हेला सेथि भी डिस्ट्रॉय हेबो तो जो थ्री की हमारे क्लाइमेट चेंज जो हमारे 45 मिलियन इंडियंस मे बी दे विल गो बिलो द पॉवर्टी लाइन सो एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड तो एटा हमारे वर्ल्ड बैंक रो गोटे डाटा हमारे रहिछ क्लाइमेट चेंज में सिग्निफिकेंटली अल्टर द shoreline habit and cost millions of the people for relocation of the port and shore infrastructure okay that globally more intense hurricanes होची डाउनफोर्स होची जो वर्षा हरिकेन बन्या बात्या जो माने कोन ना कॉज मिलियन ऑफ डॉलर इन डैमेज टू प्रॉपर्टी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर होची तो हाई सी टेम्परेचर जो इट इज आल्सो थ्रेटन द सर्वाइवल ऑफ द कोरल रीफ हम जो कोची कोरल ब्लीचिंग होची और दैट इज आल्सो ड्यू टू आवर क्लाइमेट चेंज जदि टेम्परेचर बढ़िबो तांको पाई जेतिक टेम्परेचर एक्चुअली सर्वाइवल पाई दरकार जदि अधिक टेम्परेचर बढ़िबो सी लेवल तो डेफिनेटली कोन होबो ना से माने गोटे मिनिट ओके से माने कोन हबे ना एग्जिस्ट करि परिबेनी ओके डेफिनेटली सेडा को कोन करिवे ना डिस्ट्रॉय हेबे ओके तो एस्टिमेटेड करा होची जे अराउंड हमर 370 बिलियन पर ईयर इन गुड्स एंड सर्विस हमरो जे कि एटा हो जे हमर कोन ना हा जनरेट हमर कोरल लीफ जे कि करि परथांता ओके तो सेडा को हमर थ्रेटन अवस्था रहउछन तो हमें देखिले जे हमर एटा कोन ना हमर फर्स्ट हम देखिले जे इकोनॉमिक लॉस कोन होची तापरे एनवायरमेंटल लॉस कोन होची ह्यूमन हेल्थ पे कोन लॉस पकोची हमर कोन नाइ क्लाइमेट चेंज जो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी एंड फूड सिक्योरिटी सिंपल कथा ओके क्लाइमेट चेंज जो डेफिनेटली तमर एग्रीकल्चर कोन हाम्पर हबो ओके पर्टिकुलरली हमें सेम कथा तमे जदि कहबो हमर एरियाटिक रेनफॉल जदि वर्षा बिल्कुल हेलानी भी एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी कमी जो वर्षा अधिक हेले ही फ्लड जो हमर डिस्ट्रॉय हे जो जदि हमर एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी टा हमर ए क्लाइमेट चेंज जो अफेक्ट हबो डेफिनेटली हम पाके जदि रियली हम प्रोडक्टिविटी हबनी ताले हम फूड सिक्योरिटी केमते मेंटेन करबा जे हम कहू जे 66 लोगन को हमरा प्रोवाइड करबा फूड सिक्योरिटी तो केमति हबो ना हम बोले कोड़ी घर जाऊ तो एटा तमे लिखि परिबो हम क्या बोले ओके तो एटा तमे हमरा कोन न लिखि परिबो तो एग्रीकल्चर ऊपर हमरा एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी हमरा कमी जिवो ओके तो इट इज सेंसिटिव to two broad classes of the climate induced effect one first one is direct effect due to temperature change precipitation of carbon dioxide concentration जो जदि हमें टेम्परेचर राइज हो ड्रॉट हो तो इनडायरेक्ट इफेक्ट होची तो चेंजेस इन द सॉइल मॉइस्चर एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द infestation of pest and diseases national security तो जदि rise level of the atmospheric carbon dioxide okay reduce the concentration of the protein also carbon dioxide रो जदि concentration बढ़ुची हमर कोन ना concentration of protein और essential mineral in the plant species एउडा हमर कोन हो ना decrease हे जो impact on the fisheries तो जदि changes in the temperature and season and can affect the timing of reproduction and migration of जो fish मानकर जो reproduction और migration विषय माने करि जानथि तो some marine diseases outbreak have also linked to the climate change impact on the livestock हमें कहले जे heat waves हला which are projected to increase under climate change can directly threaten the livestock by increasing the vulnerable to diseases
reducing the fertility and the decline the milk production. तो योडा को तमे कोन कहबो ना एग्रीकल्चर आ फूड सिक्योरिटी रे हमर एडा अफेक्ट करिवो ओके तो एटा तमे कोन कलो ना तीनटा एंगल देखले गोटे हमर कोन होची ना इंपैक्ट ऑन द एनवायरनमेंट ऊपर कोन होची ह्यूमन हेल्थ ऊपर इकोनॉमी ऊपर तापर हम देखले जे एग्रीकल्चर और प्रोडक्टिविटी ऊपर हमर देखले तो इंपैक्ट ऑन ऑफ द क्लाइमेट चेंज ऑन इंडिया तो इंडिया रे को भलिया तो सेडा देखिबा तो गिवन बिलो आर द इंप्लिकेशन ऑफ द क्लाइमेट चेंज स्पेशली हमर इंडिया रे को भलिया जो एटा इंपैक्ट पकेबो ड्यू टू क्लाइमेट चेंज तो एटा तमे लिखि परिबो जे हमर ओटे फिफ्थ असेसमेंट रिपोर्ट बाय आईपीसीसी जोटा कोच इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज तो सी जो फिफ्थ असेसमेंट रिपोर्ट देछि तो सेइत्रे कोन कोन हमर सब आसी जे लिखि परिबो द इफेक्ट ऑफ द क्लाइमेट चेंज ऑन द वेदर तो इथिरे हमर एक्सट्रीम टेंपरेचर आर एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज by 1 to 4 degree centigrade with a maximum increase in the coastal region. तो coastal region हमर maximum temperature हबो बोली कहौ जे नंबर ऑफ हमर मानसून डेज आर इंक्रीजेस तो वर्षा न हबार दिन हमर दिन को दिन बढ़ी बढ़ी जाउची while the number of monsoon depression has declined तो जति वर्षा हबा कथा कमी कमी भी जाउची हिमालय रीजन हमर मैक्सिमम माने इंक्रीज इन द प्रेसिपिटेशन व्हाइल द नॉर्थ जो माने जोठी जहा हबा कथा उल्टा होची नॉर्थ ईस्ट रीजन हमर वर्षा अधिक हबा कथा सेठी न होई कि हमर हिमालयन रीजन रे हमर मैक्सिमम प्रेसिपिटेशन ऑफ रेनफॉल होची ओके तो जेतले हमर इंक्रीज इन द एक्सट्रीम रेनफॉल इवेंट ऑकर एट द एक्सपेंस ऑफ वीकर रेनफॉल इवेंट ओवर द सेंट्रल इंडियन रीजन एंड मेनी मोर एरिया okay the people living in the district along eastern coast of India are expected to be especially vulnerable to the impact of extreme weather even because of the poor infrastructure and demographic development tapre amar for example Mahanadi river basin in India will see as an increased possibility of flood in September amar praya samay dekho Mahanadi re kon hoji na flood like situation create hoji okay तो एटा तुम लिखि परिबो तो सिमिलरली एग्रीकल्चर फॉरेस्ट और ट्रेड रे हमर कोन कोन हमर इंडिया रे इंपैक्ट पकेबा हमर ई क्लाइमेट चेंज आउ ये ऊपर त हमें कहै छै जे हमर ड्यू टू हमर क्लाइमेट चेंज द एस्टिमेटेड कंट्री वाइड एग्रीकल्चर लॉस इन इंडिया इन 2030 इज ओवर हमर 7 बिलियन तो 7 बिलियन डॉलर ऊपर हमको लॉस हो इंडिया रे so it will severely affect income of 10% of the population और 7 बिलियन माने तमे it will severely affect हमर 10% of the population का इनकम को अफेक्ट करिवो ओके तो wheat yield in the Indo-Gangetic plain are expected to experience 51% reduction in most high yielding areas due to heat stress हमर कहा जाउची जे जो टेंपरेचर बढ़िया जगु हमर कोन होची ना इंडो गैंगेटिक प्लेन में जति के हमर व्हीट प्रोडक्शन होतला 50% हमर रिडक्शन हो रिड्यूस की प्रोडक्शन हो तापर हमर देखु जे जो करंट टेंपरेचर जो क्रिटिकल हमर टेंपरेचर हमर प्रति वर्ष में देखु जे रिकॉर्ड हाई टेंपरेचर को जाउची नॉर्थ इंडिया इन अक्टोबर साउथ इंडिया इन अप्रैल एंड अगस्त so in the East Indian from March to June okay rice development will accelerate okay and reduce the time required for growth tapar amro a third of the forest area in the India are projected to be stand by amro 21st century but deciduous forest changing into evergreen due to increased precipitation okay health upre ta हम देखले जे एग्रीकल्चर फॉरेस्ट और ट्रेड उपरे हमर केमिति इफेक्ट पड़िबो तो हेल्थ ऊपर हमर केमिति इफेक्ट पड़ियो तमे हमें एटा डिस्कशन करिबा तो देखो हाई टेंपरेचर आर एसोसिएटेड विथ द मोर्टालिटी रेट इन इंडिया एंड हीट वेव्स विल स्पेशली अफेक्ट द आउटडोर वर्कर सो एयर हमर हेल्थ ऊपर हमर केमिति माने इंडिया रे हमें देखुचे बर्तन इंडिया रे हेल्थ सिस्टम को केमिति एटा अफेक्ट करिवो तो पर्टिकुलरली एटा हमर इथे देखा जाय छी जे हमर मोर्टालिटी रेट हमर इंडिया रे अधिक रहिबो ओके एंड हीट वेव विल especially affect the outdoor worker air pollution in combination with the increased temperature will also affect the health of people okay mental disorder
पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस सिंड्रोम हमर होई परिबो ओके ड्यू टू हमर एक्सट्रीम वेदर इवेंट एंड डिजास्टर प्रोन एरिया रे इन एडिशन टू हमर कोन ना फ्लड death होची contamination of the urban food water will increase the risk of waterborne diseases okay हमर ओटे यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया वर्कली रे ओटे स्टडी हितला से स्टडी estimated that the climate change could have contributed to the death of 59,300 farmer or farm worker over the last 30 years okay तो तुम किसी डाटा किसी देलो तापर हमरो एग्रीकल्चर और क्लाइमेट चेंज ऊपर कोन कोन हमरो थला तमे मेंशन करियो ओके जस्ट मिनिट ओके but are you guys getting some point आमे एटा को निहाती तमे कोन करिवो टोटल देखो मु तुमको आयुषंगर गोटे आंसर नोट देखो ओके से केमिति प्रिपेयर करूतले जस्ट मु तुमको देखो छी ना एमिति तो टोटल तमे एटा गोटे रेडीमेड आंसर मु तुमको देई देछि तमे पढी दबो ओके ता बाद आ गोटे जस्ट मु तुमको देखो छी ये तो ऐसे गोटे देई दिले मु केटा माने तमे कोन करियो बुलेट पॉइंट रे कोन कोन रहइबो जे एग्रीकल्चर ऊपर हमर कोन हेल्थ ऊपर कोन एनवायरनमेंट ऊपर कोन इफेक्ट पड़िबो तो सेमिति तमे प्रिपेयर करिवो सो दैट कि आमे कोन करिवा ना परीक्षा में हमको मने रखिया को पॉइंट छुडा को इजी हबो आ सेही पॉइंट छुडा को हम एक्सपांड करके लिखिबा परीक्षा रे ओके कारण परीक्षा रे सबु एई 3 घंटा भीतर सबु पॉइंट मने पड़िबो बोली ठीक नै तेनु जदि हमें लिखिथिबा एबे पॉइंट फॉर्मेट रे लिखिबा जस्ट बुलेट पॉइंट जते जीएस आंसर लिखुचे सेया आ ताकू एक्सपांड करके तमे लिखिबो एग्जाम पर ओके तो कोन कंटेंट रहिबो से कंटेंट उडा को तमे डेवलप करिवो बे जस्ट अ मिनिट मु देखु छी ओके माने एटा होची अप टू यू तुम केमिति प्रिपेयर करिवो ओके किंतु मो मते गोटे ब्लू प्रिंट काटी के रखो so let me show you तो एजुकेशन इन इंडिया तमे गोटे प्रोवर्ब लेखि लिखियो जे एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन व्हिच कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड ओके तो तापरे थ्रू आउट तमे देखियो इंट्रोडक्शन मु कोन देबी जे डाटा किछि देबी ओके पूरा टोटल देखो पूरा एनुअल स्टेट सर्वे अनुसार कोन कोन डाटा खाली डाटा ओके तापरे हिस्ट्री ऑफ हमर इवोल्यूशन ऑफ एजुकेशन इन इंडिया ओके हमर वैदिक सिस्टम थिला हमर वर्ल्ड रो फर्स्ट यूनिवर्सिटी हमें कहबा नालंदा यूनिवर्सिटी इंडियन स्कॉलर के थिले कॉलोनियल पीरियड रे को थिला तापर हमर कोन कोन कमिटी है जे वुड डिस्पास टू हंटर कमीशन टू नेशनल कमीशन एजुकेशन वर्धा एजुकेशन पोस्ट इंडिपेंडेंस रिफॉर्म रे एजुकेशन सिस्टम को होलिया थिला यूनिवर्सिटी एजुकेशन हमर तापर सेकेंडरी एजुकेशन इंडियन एजुकेशन सिस्टम नेशनल पॉलिशन एजुकेशन 86 रे कोन हला 92 रे कोन हला कस्तूरी रंगन कमिटी 2019 रे हमर जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जो एजुकेशन पॉलिसी अछि जे कोन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 रे हमर कोन हेतला कि हमर 2+ सिस्टम एमती जे 5+2+3 हमर कोडिंग डिकोडिंग तो एमिति जहा जहा अछि तमरो तापरे कोन करलो ना तमे मु जो एजुकेशन
तमर इंपोर्टेंस एंड सिग्निफिकेंट ऑफ एजुकेशन इकोनॉमी कोन नंबर जे रेज द प्रोडक्टिविटी प्रमोट द एंटरप्रेन्योरशिप इनोवेशन टेक्नोलॉजिकल एडवांस ला सस्टेनेबल डेवलपमेंट ला बूस्ट जीडीपी पॉवर्टी लिटरेसी रेट क्रिएट एम्प्लॉयमेंट ओके तापर हमर सोशल कोन होची कैपेसिटी बिल्डिंग हला नॉलेज एंड वैल्यूज हला हमर बूस्ट एफिशिएंसी एंड कॉन्फिडेंस हला बेटर डिसीजन मेकिंग तो एवडा हमर सोशल हला रिड्यूस द क्राइम रेट ग्रोथ इन द ह्यूमन वर्च्यू पॉलिटिकल हमर कोन जे our about the fundamental rights and duties fairness in the system हमला better function of the government corruption reduce करिवो overall हमर nation building रे different level of education कोन इशू और सॉल्यूशन कोन ओके हमर जो प्री स्कूलिंग रे कोन कोन प्रॉब्लम कि रैपिड अर्बनाइजेशन जो हमर राइज ऑफ द न्यूक्लियर फैमिली जो फोर्स द पेरेंट्स टू सेंड हमर प्री स्कूल होची प्राइवेटाइजेशन ऑफ द हमर प्री स्कूल एडुकेट हमर जो रेगुलेशन होनी विदाउट एडिक्वेट रेगुलेशन वन साइज फिट फॉर ऑल अप्रोच हमर एजुकेशन दिया होची फोकस ऑन द प्रॉफिट मेकिंग रादर देन हमर लर्निंग प्रोसेस जे हमर जो प्राइवेट स्कूल हमर प्रॉफिट मेकिंग पे हमर दिया होची मोर एब्सेंस ऑफ यूनिवर्सल करिकुलम तो सॉल्यूशन कोन ना प्री स्कूल डिक्लेयर द राइट टू एजुकेशन हमर हबा करिकुलर फ्रेमवर्क रहबा कथा तो एमिति हमर कोन कलो ना प्राइमरी लेवल ले कोन कोन इशू अछि कोन कोन सॉल्यूशन सेकेंडरी लेवल ले कोन कोन हमर इशू अछि तो हमर सेकेंडरी को लैक ऑफ एक्सेस टू द स्कूल हाई ड्रॉप आउट होची पुअर करिकुलम नो एम्फेसिस ऑन आईटी एंड वोकेशनल एरिया पुअर लिंकेज विथ हमर हायर एजुकेशन तो एक्सपैंड हमर सॉल्यूशन कोन ना एक्सटेंड हमर प्रोविजन ऑफ आरटीआई टू कवर हमर सेकेंडरी एजुकेशन को inclusion of vocational course scaling of our existing national skill of qualification okay higher level le kono na no low enrollment and equity तो तापरे हमर लो रेगुलेशन रहिला पॉलिटिकल इंटरफेरेंस रहिला तापरे हमर रिसोर्स आर पुअर रहिला इंफ्रास्ट्रक्चर हमर हायर लेवल बेटर नाही रिसर्च फैसिलिटीज नाही तो नेपोटिज्म करो जो करप्शन फेवरेटिज्म एवडा होची ओके तापर इनएडुकेट एम्फेसिस ऑन R&D आउ कोलैबोरेशन विथ इंडस्ट्री एवडा को नाही तो तार सॉल्यूशन कोन हमरो मोस्ट हमर इंडस्ट्री रेडी टाइप ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट हवा कथा हमरो रिफॉर्म इन द जो एडमिन आउ रिक्रूटमेंट हवा कथा ओके मेथोडोलॉजी एंड अकाउंटेबिलिटी एमिति तमे ऑनलाइन एजुकेशन रो नीड ऑफ द आवर जो कोविड 19 समय हमरो ऑनलाइन एजुकेशन ता तो ऑनलाइन एजुकेशन को हमरो मोर स्ट्रांग दिया जिवो ओके कौन पे ऑनलाइन एजुकेशन इंपोर्टेंट अफोर्डेबल इजी टू एक्सेस फ्लेक्सिबिलिटी टू प्लान शेड्यूल सॉल्व द टीचर स्कैर्सिटी एनवायरनमेंट फ्रेंडली एठी बसी के हमें वर्तमान जोठी बसी के हमर पढ़ी परिबो तमे समस्त कनेक्ट हे पर जे डिफरेंट जो पार्ट ऑफ ओडिसा रे रहले भी अपडेट हमर होची कोन अपडेट हमर आ गोटे हमर जो नॉलेज रा हमर सबोडा अपडेट रहबा कथा स्टूडेंट don't have to travel ओके ऑनलाइन एजुकेशन और ट्रैवल घरे बसी के हमर कोन करिवे ना प्रिपेयर करि परिबो जे जोटी रहै छै ओके भुवनेश्वर आसीबा दरकार नै कि कोठी डिसएडवांटेज होची सोशल आइसोलेशन कि लैक ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द कम्युनिकेशन स्किल ओके आउ चीटिंग इज इजी घरे बसी के हम यदि ऑनलाइन एजुकेशन जे सेठी कोन ना हमें टीचर पढेला अटेंटिव सुनिया दरकार एबे कि सोई छथि कि सुनु छथि डाउट ओके मु मोर कहि चलछि तमे कोन सुनु छ कि सोई छ जडा नै ओके चैलेंजेस डिजिटल डिवाइड जेंडर डिवाइड डिफिकल्ट टू प्रिवेंट द हमर एडजस्ट तो एमिति मो कहे कथा होछि जे तो टोटल गोटे एससी को कोन करबो तम खाली मु गोटे ब्लूप्रिंट काटी के रखिबी एजुकेशन ऊपर हला वुमेन एम्पावरमेंट हला प्रॉपर्टी हला एग्रीकल्चर हला ब्लूप्रिंट एंती काटी के रखिबी आ परीक्षा बेले मोर एडा बुलेट पॉइंट एंती रहिबो माइंड मैप रे भले मु एवडा को एक्सपांड करके लिखिबी ओके तो एसेडा को तमे टोटल देखो एसेडा 6 पेज रे हमें टोटल लिखाई छै किंतु तमे तो लिखिबो एटा को रियली जे गवर्नमेंट स्कीम कोन अछि समग्र शिक्षा रहिला ओके पर समग्र शिक्षा रहिला निष्ठा प्रोग्राम रहिला कि हमरो मेंशन करि परिबो ओके तो हमरो स्ट्राइव रहिला ध्रुव रहिला तो जो जो गवर्नमेंट स्कीम हे छै विद्यांजलि पढ़े भारत बढ़े भारत ओके तापर हमरो राष्ट्रीय जो आविष्कार अभियान इक्विप रहिला उड़ान रहिला टेकला श्रेयस पोर्टल ए सब गुडा को तमे कोन करिवो लिखि परिवो वेब फॉरवर्ड रे हमर कोन रहिला जोडा को तमे लिखि परिवो तो एजुकेशन में ऊपर तमे कोन करिवो ना टोटल हमर जो सोशल इश्यू ओटा अछि वर्तमान ओके जो
मेन 365 रो बाहाची तो सेहि थ्रू एजुकेशन हला वुमेन एम्पावरमेंट हला इवन इफ एनवायरनमेंट रिलेटेड हला तो सेहि थ्रू तुम एसए पार्ट पई कंटेंट नै परिबो आ कंटेंट को तुम कोन करो ना प्रिपेयर करो ओके तो एइथरे मु कोन रहिबो ओके तो से कंटेंट को प्रिपेयर करके तुम शॉर्ट रे रखो सो दैट सेटा को तुम दे परिबो ओके तो रिवाइज करिया को इजी हबो सर 10टा एक्सपेक्टेड ऐसे सर टॉपिक दियो तो हम प्रिपेयर हो डेफिनेटली को देबी ओके डोंट वरी और 10टा एक्सपेक्टेड ऐसे टॉपिक दिया जबो जेमति गोटे क्लाइमेट चेंज गोटे माने मोस्ट प्रोबेबल क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग आ भितरु डेफिनेटली प्रति वर्ष हमर पढुचे पढिबो ओके जोटा एबे न्यूज रे अछि क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग गोटे हॉट टॉपिक ता भितरु तमर गोटे निहाती पढिबो और तापरे गोटे से जो ये करिवो चारिटा एसे ओके ठीक अछि ना नहीं मिनिमम तो तमे 6-7टा एसे प्रिपेयर करके जीवो ओके माने मो कहे कथा हो पूरा माने एमती नहीं जेमती आयुषी जेमती सब आयुषी 25टा एसे एमती लिखि देथिले जोडा देखु जो मैं तो एमती नहीं कि टोटल पूरा एसे लिखिबा नहीं ए पॉइंट गुडा ओके तो मु लिखि सर देछि कि जो जोडा कथरे आ कोन ऐड होबर अछि कोन नहीं तमे निजे से बडा माने ये करि परिबो लिखिले जे पॉइंट गुडा को नहीं कि मते परीक्षा रे मु ए भले करिवो ओके कोविड-19 लास्ट टाइम पड़ी जाइछि ओके कोविड-19 हमें ऑलरेडी देखले जे ग्लोबल इकोनॉमी ऊपर कोविड-19 हमरो जो मॉक टेस्ट देथिला और सेटा भी परीक्षा रे पड़िथिला ओके कोविड-19 पड़ी जाइछि मु देबी टॉपिक हमें गोटे टॉपिक एनवायरनमेंट और क्लाइमेट चेंज ऊपर प्रिपेयर करो सेटा गोटे हमरो ओके ये करो सुनो एनवायरनमेंट क्लाइमेट चेंज ऊपर गोटे करो एजुकेशन जो एजुकेशन ऊपर गोटे हमरो जो सोशल इश्यू पर एजुकेशन को नहीं गोटे करो ओके जेमती लास्ट टाइम गोटे सोशल मीडिया ना कोन गोटे पड़ितला ओके तो ए जो गुडा हमर सोशल मीडिया हला कि तमरो डिजास्टर मैनेजमेंट ऊपर डेफिनेटली करिवो ओके डिजास्टर मैनेजमेंट आउ हमरो क्लाइमेट चेंज ग्लोबल वार्मिंग एजुकेशन तापरे हमरो जोडा न्यूज रे अछि ओके तो सेउडा को हम नै कि करिवो ओके इवन इफ हमरो इंटरनेशनल रिलेशन भले गोटे टॉपिक पड़ी जाउछि जे इंडिया इन द इंडो पैसिफिक रीजन एमिति को नै कि पढुछि ओके ठीक अछि हम करिवो ओके किंतु क्लाइमेट चेंज आप रे गोटे डेफिनेटली करिवो ओके डाउन डिस्कशन क्लियर करगला ओके सो लेट मी हमें जो डिस्कशन करथले क्लाइमेट चेंज ऊपर ओके सो लेट मी कंप्लीट एथे खाली पॉइंट गुडा को हम कहि जाउची ओके तो क्लाइमेट चेंज हैव सीवियर इम्पैक्ट ऑन एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज ओके तो जेमिति कि सर्टेन रीजन इन द वर्ल्ड लाइक साइबेरिया एंड नॉर्थ कनाडा विल बेनिफिट फ्रॉम ए स्मॉल राइज इन टेम्परेचर कारण सेठी वर्षा को तो बरफ पड़ी के रहउची तो यदि टेम्परेचर राइज होची से माने को पे बेनिफिट सिंस दे विल हेल्प to prolong the duration of the crop. However, agriculture in the tropic countries like India will come under serious threat due to climate change. काहेकि ना इथरे हमर unfavorable changes in the mean temperature body or drought हबो यदि excess and deficit rainfall हला extreme weather event हला sea level rise हबो more frequent and जो severe coastal storm and tsunami होची ओके डेफिनेटली हम देखु जे एबे उडुड आसला तापरे हमरो पनी आसला तो एमिति हमरो यदि वर्षा का हमरो कोन आसीबो ना साइक्लोन और सुनामी आसीबो तो एग्रीकल्चर रोडा को डिस्ट्रॉय करिवो ओके so the need of the hour is to formulate and implement a local suitable comprehensive approach based on the idea of climate smart agriculture okay तापरे क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर कोन ना आज पर हमरे FAO climate smart agriculture is a form of agriculture ठीक है हमरो productivity increase हबो resilience एटा हबो enhance the resilience तापर हमरो reduce the remove the greenhouse gases wherever possible enhance the achievement of the national food security okay and development goals तो इथरे ए क्लाइमेट रिस्क मैनेजमेंट सेंटर हमरो एस्टैब्लिश पंचायत लेवल हमरो क्लाइमेट रिस्क मैनेजमेंट सेंटर हबो ट्रेंड ए कैडर ऑफ कम्युनिटी और क्लाइमेट रिस्क मैनेजमेंट क्लाइमेट स्मार्ट मिलेट हमरो कंजर्वेशन ऑफ क्लाइमेट स्मार्ट मिलेट
and their reintroduction in the diet as millet and other underutilized crops are more tolerant to drought and heat. तो जेमती आमे कहूजे ब्रिटी कॉटन हला ब्रिटी कॉटन हमरो गोटे क्लाइमेट चेंज को आखि आगे रखी करा है जे तो ड्रॉट है भी बंची पारिबो पेस्ट रेजिस्टेंस रहबो ओके तो सब डायरेक्शन हमरो कोन होजी ना जोटा कि क्लाइमेट रिस्क को नै कि जो क्रॉप उडा को हमरो डिजाइन करा जाय छै ओके the farming system for adoption of the climate change will have to design by ICAR, the Agriculture University of Krishi Vigyan Kendras. Okay, popularize them local men and women trained to become our climate risk manager. Okay, तो हमारा गोबर्धन योजना जमती है तो मीथेन जोटा कि हमारा होच गोटे जो ग्रीन हाउस गैसेस तो आम गोबर्धन योजना रे आमे कोन करि परिबा ना सेटा को बायोगैस प्लांट रे कन्वर्ट करि परिबा मीथेन टा को एटमॉस्फेयर को न छाडी कि सेटा को यूटिलाइज करि परिबा हमें okay so methane which is another greenhouse gases can be used to promote biogas plant for example govardhan project nitrous oxide emission as a result of fertilizer application can be reduced through the use of our neem coated urea जदि हमें यूज करिबा तो सेथिरा हमर nitrous oxide emission कम होबो okay तो एगुडा का हमरो सो देयर विल बी अ नीड ऑफ माने एथिरा में कहू जे क्लाइमेट रिस्क मैनेजमेंट सेंटर आ गोटे मेन होची जे स्मार्ट एग्रीकल्चर करबा जोडा कि क्लाइमेट प्रूफ हेथिबो तो किछि भी डिजास्टर की जहां भी हेले तो ताको रेजिस्टेंस करि के हमरो से तारो ओय ऊपर होतबो ओके तो एगुडा तमे मन रखिबो एटा मन रहउची तापर नीम कोटेड एरिया कथा कहले तापरे जेमति कि there will be a need of anticipatory research in several area of the farming that need to be changed example hela crop like wheat rice तो से माने कोन होची ना breeders should shift the attention to per day productivity from per crop productivity okay तापर हमर होची कोन ना जे preparation for more frequently flood or hailstorms the scope of our biosaline farming involve both halophytes, like salt tolerant plant, and also marine aquaculture must be explored, like that of our farmer of the Jodaki Kutanad in Kerala perfected the method of cultivation rice bowl, cultivating rice below sea level. Okay, the saline management of tolerant varieties amara okay. तापर हमर कोन ना एफर्ट टू काउंटर क्लाइमेट चेंज पई कोन ना इंडिविजुअल लेवल रे केमती तमे करिवो क्लाइमेट चेंज को ओके जो क्लाइमेट चेंज पई केमती एफर्ट दबो जे हमरा एक रहला इंडिविजुअली केमती क्लाइमेट चेंज को कंट्रीब्यूशन क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट करिया पई केमती कंट्रीब्यूशन तमे करिवो ना कार्बन फुटप्रिंट को मु कमेबी केमती कार्बन फुटप्रिंट को कमे के आइदर मु प्लांटेशन करिवि यदि मु गछि गछ लगौछि तो डेफिनेटली कार्बन इटा गोटे कार्बन सिंक हिसाब रे यूज करिवो सो ईटिंग ए स्मॉल प्लांट बेस्ड डाइट अवॉइडिंग एयर ट्रैवल तमे कोन आमे निजर कार नबा अपेक्षा यदि पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में समस्त जिबा तो किछि तो एमिशन कमी जिवो समस्त यदि कार न ले के जिबा तो अवॉइडिंग एयर ट्रैवल ला लिविंग car free or using public transport and having smaller families can have high impact on the reduction in carbon footprint. Simple steps like replacing regular car with electric and hybrid vehicle. तो जोड़ा का vehicular emission होची तो हमें पेट्रोल डीजल कार बदले जदि इलेक्ट्रिक हाइब्रिड मॉडल कार यूज करिवा रिसाइक्लिंग वेस्ट एंड अपग्रेडिंग द लाइट बल्ब ओके तो हमर जदि जो गुडा को कम एनर्जी कंजप्शन करछे एबे तो हमर एलईडी बल्ब बहुत कम पावर जो कंजप्शन करछे तो सेही बळे हमर जोडा को कार्बन फुटप्रिंट को कमौछि सेही बळे हम एप्लायंस को यूज करिवा फॉर एग्जांपल लिविंग कार फ्री सेव हमर 2.4 टन of CO2 equivalent per year while eating a plant based diet save 0.7 ton of carbon dioxide okay equivalent year ओके तो एटा इंडिविजुअल लेवल रे तो इंडिविजुअल लेवल रे कोन हम करबा गाड़ी मोटर यूज करिया निजर गाड़ी मोटर यूज करिया बदले पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करबा ओके हमर इलेक्ट्रिक व्हीकल हमें जो रादर देन पेट्रोल और डीजल बदले इलेक्ट्रिक व्हीकल और हाइब्रिड व्हीकल यूज करबा ओके तो एटा हमर इंडिविजुअल लेवल रे तमे कमे परबो कम्युनिटी और
रीजनल लेवल रे केमिति हम यूज करि परिबो जे कम्युनिटी लेवल रे सेवरल हमर केस स्टडी करा हेछि फॉर एग्जांपल इंटीग्रेटेड सॉइल वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट एट कानपुर रे हेछि क्लाइमेट फ्रेंडली कंस्ट्रक्शन टेक्निक एंड गोरखपुर रे तो इथले कोन होछि ना ए गोरखपुर रे व्हिच इंक्लूड द ब्रिक फ्रॉम local area and use the indigenous knowledge that help to reducing the cost of building, reducing the carbon footprint associated with the transporting bricks long distance and enabling climate resilient house. Okay, तो गोरखपुर हमर लोकल एरिया रे हमर कोन होची ना ब्रिक्स ये करा होची जोटा कि इंडिजिनियस नॉलेज यूज करके ओके तापर हमर सेनेगाल विथ फाइनेंशियल एड फ्रॉम यूएनडीपी 203 villages are establishing about 26 community natural waste reserve okay तो सिमिलरली हमरो जो जो गुडा हमरो प्लास्टिक बैन करा जाऊ ओके तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट एनफोर्स द प्लास्टिक बैन इन द स्टेट जोडा कि हमरो काहे कि ना ए जो क्लाइमेट चेंज हमें को अकॉर्डिंग टू यूएनईपी if the current population current pollution rates continue there will be more plastic in sea than fish by 2050 এটা কোন হচ্ছে কি আমরা সি রে প্লাস্টিক অধিক থিব ফিশ কম থিবে as a globally amaro 14% of the plastic is recycled recently Maharashtra government has enforced plastic ban in the state also Uttar Pradesh government has reintroduced plastic ban in the state from 15 July okay तो थर्ड टाइम 2015 हेतला एटा होटेला तो हमर विलेज हमर पालाकाड केरला रोड अछि सो डिवाइस ए यूनिक citizen initiative aimed at collection segregation and scientific disposal of waste from as many as 160 households started 5 years ago and the village has a waste collection center which work under the supervision of the representative of the family okay এই সব গুড়া কম্ୟୁନିଟି লেভেল ରେ ଆମର ଯେମିତି କାର୍ବନ ଯୋଉ ଗ୍ରୀନ ହାଉସ ଗ୍ୟାसेସ୍ ଗୁଡାକୁ କେମିତି କରିବ ସେଗୁଡା ଗ୍ଲୋବାଲ ଲେଭେଲ ରେ ପ୍ୟାରିସ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ହେଇଛି ଯୋଉଥିରେ କି ଆମର କୁହାଗଲା କି 1.5 ଡିଗ୍ରୀ ଟେମ୍ପରେଚର ତଳକୁ ଆମେ ରଖିବା ସେଥିପାଇଁ $100 ବିଲିୟନ ର ଆମେ ଗୋଟେ ଫଣ୍ଡ ତିଆରି କରିବା ଆଉ ଏଇ $100 ବିଲିୟନ ର ଯୋଉ ଫଣ୍ଡ ତିଆରି କରିବା ସେଇଟା ଆମର କଣ ନା କ୍ଲାଇମେଟ ଯୋଉ ଚେଞ୍ଜ କୁ ମିଟିଗେଟ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ସ୍ଟେପ୍ସ ନିଆଯିବ ଡେଭଲପିଂ କଣ୍ଟ୍ରି ମାନଙ୍କୁ ଫଣ୍ଡିଂ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରାଯିବ जोटा हमर पेरिस क्लाइमेट डील हेतला तमे लिखि परिबो जे हमर इंडिविजुअल लेवल रे कोन कम्युनिटी लेवल रे कोन आउ हमर जो इंटरनेशनल लेवल रे केमिति तमे क्लाइमेट चेंज को रखि परिबो ओके तापर इंडिया ग्रीन एक्शन कोन नेछि स्टेप्स टेकन बाय गवर्नमेंट नेशनल सोलर मिशन हला 8टा हमर मिशन फॉर हमर नेशनल एक्शन फॉर क्लाइमेट चेंज बाय ओके तो कौन ना नेशनल सोलर मिशन है नेशनल मिशन फॉर एनहांस एनर्जी एफिशिएंसी मिशन फॉर सस्टेनेबल हैबिटेट वाटर मिशन नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल इन द हिमालय इकोसिस्टम नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया नेशनल मिशन फॉर एग्रीकल्चर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर नेशनल मिशन ऑन स्ट्रेटेजिक नॉलेज एंड क्लाइमेट ओके तो तापर हमर इंडिया कोन करछि ना तमे जानि छ जे रिन्यूएबल एनर्जी हमर टारगेट जे रिन्यूएबल एनर्जी हमर एबे तम जो पंसिल को जो कॉप 26 हमर इंडिया जो पंसिल हमें कहिचे सॉरी पंचामृतम हमें कहिचे कॉप 26 रे हमर जोटा कि ग्लासगो रे हेतला जे हमें कहले जे जेति कि हमर कार्बन एमिशन होछि कि हमर पावर जेति कि हमें यूज करूचे रिन्यूएबल एनर्जी को हमें 50% हमर रिन्यूएबल एनर्जी करबा कोथरो ना बाय 2030 तमे जानि थिए जे हमर 175 गीगावाट बाय 2022 हमर रिन्यूएबल एनर्जी रो आनिया पे पर्टिकुलरली सोलर होछि 100 गीगावाट by 2022 सुधा ओके तो मोर यूज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी इंडिया गोटे हमर लीडर इन द इंटरनेशनल सोलर अलायंस सेति में तयारी करिछि ओके तापर पैट स्कीम गोटे ओके तो ए जो पैट हम स्कीम इज नाउ इंडिया रो मेन एफर्ट डिफाइनिंग पॉलिसी इट इज ओवरसीन बाय हमर ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी एंड इंट्रोड्यूस्ड बाय नेशनल मिशन ऑफ एनहांस एनर्जी एफिशिएंसी ओके ठीक अच्छी सरीला आउ बेसी नहीं ओके ठीक है 5 मिनिट ओके तो यहाँ आउ कौन कौन ना नेशनल एफोरेस्टेशन गछ लगा जाउची
तापर नगर वन उद्यान योजना होची डेजर्टिफिकेशन लैंड डिग्रेडेशन एटलास इन इंडिया तापर ग्रीन स्किल डेवलपमेंट जो थे कि कुहा होची लोक मान को ट्रेन करा जाउची ग्रीन स्किल डेवलपमेंट रे सो ग्रीन स्किल कंट्रीब्यूट टू प्रिजर्विंग एंड रिस्टोरिंग लोक मान को ट्रेन करा जिवो हाउ टू प्रिजर्व एंड रिस्टोर द एनवायरमेंटल क्वालिटी फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर ओके तो तांको कोर्स दिया होची तापर तांको जॉब भी प्रोवाइड करा होची ओके तापर क्लाइमेट फ्रेंडली ट्रांसपोर्ट सेक्टर तो सेति पे हमर भारत स्टेज 4 रु हमें डायरेक्टली बे भारत स्टेज 6 रो BS6 रो फ्यूल हम यूज करबा जाऊ जो जा फल रे की हमर कोन हबो ना वेहिकुलर एमिशन रे हमर जो ग्रीन हाउस गैसेस जोडा कम एमिशन हबो हाइब्रिड या इलेक्ट्रिक व्हीकल मोटर आड़ को जाउचे फेम इंडिया में गोटे सुनी थिबो जे हमर इलेक्ट्रिक ये व्हीकल को जाउचे कंजर्वेशन ऑफ एग्रीकल्चर फॉरेस्ट और वाटर रिसोर्स ग्रीन इंडिया मिशन हमर जो ग्रीन महानदी मिशन कोन नाम गच्छ लगा हबो तो सेतिरे कोन हबो फॉरेस्ट कवर जदि हमर अधिक ला ग्रीन इंडिया मिशन टू इंक्रीज द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ द फॉरेस्ट ओके ग्रीन इंडिया मिशन में क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ द फॉरेस्ट कवर हमर 10 मिलियन हेक्टर लैंड रखा हो बिल्कुल फॉरेस्ट गछ लगेबा कार्बन सिंक हिसाब रे सोडा काम करिवो ओके तो नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी हमर आसी जे फॉरेस्ट सेक्टर रे 1988 रे तो पार्टिसिपेटरी फॉरेस्ट मैनेजमेंट एक्ट जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट एक्ट थला तो एटा हमर कम्युनिटी फॉरेस्ट मैनेजमेंट एक्ट आसी तो सेति हमर फॉरेस्ट कवर को हमर इंपोर्टेंस दिया जाउची ओके तो एवडा तमे क्लाइमेट फाइनेंसिंग हमरो तो एते लिखिबो जे कोन हमरो डिफरेंट हमरो ग्रीन क्लाइमेट फंड गोटे अछि ओडा को तमे लिखि परिवो ओके तापरे जेंडर और क्लाइमेट चेंज तापरे हमरो रहिबो आ कोन रहला यार क्लाइमेट रिफ्यूजीज क्लाइमेट चेंज एंड टेक्नोलॉजी ओके कंक्लूजन तापरे दे परिवो कंक्लूजन रे तमे किछि हमरो कोटेशन दे परिवो गांधी जी कर जेमती द अर्थ हैज एनफ फॉर एवरीवनस नीड बट नॉट एवरीवनस किड एटा भी गोटे ऐसे पढितला एटा भी हमर क्लाइमेट चेंज आ तमरो सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऊपर एटा ओके तमे एथि लिख परिवो सो गांधी सेड द अर्थ हैज एनफ फॉर एवरीवनस नीड नॉट एवरीवनस ग्रीड with the entire world coming together to secure the future and pass on the legacy of the earth to our forthcoming generation we can hope to create resource to satisfy everyone's need okay इथरु कंक्लूजन रू तमे केते गुडी हमरो लिखि परिबो कोन सब कंक्लूजन रे ओके तो इंडिया gears to achieve global phases in the energy industry through such initiative investment in R&D would increase our knowledge sharing among various stakeholders okay हमरो इंडिया में कहि परिबा जे हम यूज प्लास्टिक बैग हमरो यू बैन करिकी ओके हमरो इको फ्रेंडली हमरो बैग हम यूज करू छे ओके तापर हमरो कोन करबा ना हमरो जेमति कि हम कहू छे सस्टेनेबल वे रे हमरो वाटर को यूज करू छे कि कंजर्वेशन ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग हला तो जत्ते हम चाहू छे ओके तो सब एरिया रे हम ट्राई करू छे कोन करिया को ना एनर्जी को सेव करिया को आ जेमति कि ग्रीन हाउस गैसेस रो प्रोडक्शन जो तार एमिशन कम हबो आ तापे हमें एफर्ट दला भाई so human have to learn to care about what happened to other species and ecosystem that are and to treat the nature as if it mattered what is more important is this juncture is that human can no longer treat the environment and other species as merely object but take care them for their own well-being हमें कंक्लूजन लिखियो मु मझरे किछि पार्ट ये करि देछि जे हमर क्लाइमेट चेंज और टेक्नोलॉजी केमिति तमरा जो गोटे टेक्नोलॉजी के यूज करके हमर क्लाइमेट चेंज को केमिति हमें करि परिबा ओके सर पीडीएफ गुडा केबे शेयर करथिले सर ना ऑलरेडी ग्रुप रे अछि मात्र करि दो सब ओके इथरे देखो तुमको गुडाए इथरे टॉपिक अछि ओके तुमको कंटेंट इथरे हेवी कंटेंट पूरा रेडीमेड तुमको मिलि जिवो ओके कोन अछि इथरे ओके हेल्थ केयर इन इंडिया वुमेन एम्पावरमेंट
social media and its evil, tourism in India, education in India, agriculture, climate change, is the world witnessing reverse globalization. तो हमरो एइथले कोन होची हमर ए टॉपिक गुडा को अछि तो एइथले गुडा करबो आउ जोडा का हमर होची आमे करबा अन्य गुडा को जोडा को ओके किंतु एडा करबो आ केते गुडा हम कंपाइलेशन भी देइथली ओके सोडा को भी हमर करबो ओके सर आउथर टी शेयर कर दियंतु ठीक अछि मु कर देबो ओथे सर सर गोटे पैराग्राफ रो आउट पैराग्राफ कनेक्शन टा लास्ट कोन टा लिखि कि कनेक्शन करिवो माने सपोज इंपैक्ट रो जीवो सॉल्यूशन पई देन आमे कोन लिखि कि जीवा कथा गोटे सेंटेंस रो आउ सेटा जोटा को जॉइन करबो हमें एटा इंपैक्ट अछि सो दिस इंपैक्ट कैन बी सॉल्व बाय डिफरेंट हमरो जो वे कहि कि ता सॉल्यूशन ना गुड नै थिबो तो गोटे रो जॉइन कला वाली को जस्ट सेटी कनेक्शन टा क्रिएट करबो सर माने कनेक्शन टा हला गोटे करिया पे गोटे सेंटेंस रे कनेक्शन करी हे जीवो माने एमती नै कि निहाती नै किछि एविडेंस दे मैक्सिमम हां नै हेमिति नै गोटे सेंटेंस रे कनेक्शन करी कि पुनी नेक्स्ट पैराग्राफ तो भी जीवो अच्छा ठीक अछि सर थैंक यू ठीक अछि ठीक अछि अन्य गुडा के हम करबा ओके सर अराउंड हमें केते पेज लिखिबो तो हमर देखो जेहेतु 200 मार्क रहउची ओके